Hi guys, welcome to my video lecture. In this video lecture, I am going to talk on new topic, data compression. So before going to be start my session, I just want to give the definition of multimedia. Multimedia is the presentation of information using the combination of multimedia components such as text, audio, video, images and animation. Dear friends, as I told, multimedia is the presentation of information. That means multimedia is a way through which we are able to be present our information using the combination of multimedia components, So what are the multimedia components? We have 5 components of multimedia: text, audio, video, image and animation. So if I want to be present my information in more attractive or unattractive way, then we have to use the concept of multimedia, and using the 5 basic components of multimedia we make our information more attractive or interactive. So once we can use these 5 components in our information, then definitely the size of the file will be get increase. That means the size of the file will be more. Then once the size of the file will be big, then we need more space to save the particular file, we need more time to transfer the particular file on the internet. Dear friend, let us consider one example. I am taking this class for you and I am preparing the video lecture. Once I will complete this video lecture session, then finally I will get the file, then file size will be around 3 GB. So we need a storage device to shape the 3 GB file, and if you want to be transfer this 3 GB file through any communication channel, then again it will take a more time to upload, and for you also it will be difficult to download and see the file. Then what is the solution for that? So we have to go for data compression. So मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था आपको कि अभी मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने के बाद जो मैं फाइल मेरे पास आएगा वो फाइल हमारा लगभग 3 GB का होता है। वो 3 GB का फाइल को हमें सेव करने के लिए स्टोरेज स्पेस भी चाहिए हमें, यानी कि 3 GB वो ऑक्यूपाई करेगा एंड दैट इज टू बिग। साथ ही साथ अगर ये फाइल को 3 GB फाइल को अगर हम आपको किसी भी कम्युनिकेशन चैनल फॉर एग्जांपल यूट्यूब के द्वारा अगर हम आपको ये वीडियो डालते हैं, आप अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो पहले तो ये दिक्कत होगा कि इसको हमको लोड करने में ही बहुत सारा समय लगेगा, और फिर हमें जब लोड हो भी जाएगा तो फिर आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, उस वक्त भी आपको ज़्यादा समय लगेगा और आपका इंटरनेट भी स्पीड चाहिए और MB भी आपकी ज़्यादा खर्च होगी। सो हम लोग क्या करेंगे इस स्थिति में? देन वी गॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड डेटा compression. So I hope it is clear why we are going to use the concept of data compression. So मैं समझ रहा हूँ कि अब आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि डेटा compression को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। So डेटा कॉम्प्रेशन क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। सो डेटा कॉम्प्रेशन क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग
It's a process of reducing the size of any file or data. So data compression क्या है? It's a process through which we are able to be reduce the size of any data or file. समझ रहे हैं? हम इस प्रोसेस के द्वारा हम किसी भी फाइल का या डेटा का हम लोग क्या करते हैं, उसकी साइज को हम लोग क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और उससे हमें क्या फायदा होता है? इट विल कंज्यूम लेस स्पेस एंड लेस टाइम टू ट्रांसफर। समझ रहे हैं? अगर हम किसी भी फाइल का उसकी साइज को हम रिड्यूस कर देंगे तो वो फिर अगर हम कहीं पर उसको रखेंगे तो हमारा लेस स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। अगर उस फाइल को अगर हम कहीं भेजना चाहेंगे तो हमें क्या लगेगा, कम समय में उसको हम लोग किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हम लोग उसको भेज सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है इट इज द टेक्निक थ्रू विच वी आर एबल टू मॉडिफाई, reconstruct, encoding, converting the instance of any data to reduce its size. Dear friends, again please try to understand this point. कहता है कि डेटा कॉम्प्रेशन हमारा एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग मॉडिफाई करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं, इनकोड करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फाइल को टू रिड्यूस इट्स साइज। क्यों? उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए। सो हमारा एक ही टारगेट है डेटा कॉम्प्रेशन में, हमें साइज को क्या करना है, रिड्यूस करना है। क्या करना है, हमें साइज को रिड्यूस करना है। सो रिड्यूसिंग क्या करना है, साइज को। यहां पर भी हमने देखा साइज को रिड्यूस करना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर हमारा डेटा कॉम्प्रेस्ड हो जाता है तो उससे हमें क्या फायदा है। क्या फायदा होगा, हमें स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो हमें कम लगेगा। फाइल को सेव करने के लिए हमें कम स्टोरेज कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी। वो फाइल को हम लोग स्पीडली हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये दोनों से हमें क्या फायदा होगा, हमारा कॉस्ट भी इस पर फर्क पड़ता है। यानी कि अगर बड़ा फाइल को हम ट्रांसफर करेंगे तो ज़्यादा एमबी होगी, ज़्यादा एमबी की साइज हमारे कॉस्ट भी ज़्यादा तो लगेगा ना। तो इस तरह से अगर हम डेटा कॉम्प्रेशन के दौरान अगर हम डेटा कॉम्प्रेशन करते हैं तो हमें ये फ़ायदा होता है कि साइज हमारा उसका कम हो जाने से स्टोरेज कैपेसिटी कम लगती है। फिर हमें और ट्रांसफ़र के दौरान हमारे एमबी भी कम होता है और स्पीडली कम समय में उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर पाते हैं। डेटा कॉम्प्रेशन को हम दूसरा नाम भी जानते हैं, उसको क्या दिया गया है, बीट रेट रिडक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीट रेट रिडक्शन और सोर्स कोडिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीट रेट रिडक्शन और सोर्स कोडिंग भी हम लोग उसको कहते हैं। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ डेटा कॉम्प्रेशन विच हेल्प्स यू टू गिव द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द डेटा कॉम्प्रेशन। अब यहां पर हमने इस डेफिनेशन के अनुसार दो पॉइंट्स को हमने पाया कि हम लोग डेटा कॉम्प्रेशन क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन। देन वी हैव अ टू प्राइमरी रीजन फॉर द डेटा कॉम्प्रेशन। वी हैव अ टू प्राइमरी रीजन फॉर द डेटा कॉम्प्रेशन। फर्स्ट इज स्टोरेज, सेकेंड वन इज टाइम। ठीक है। हम लोग क्यों डेटा कॉम्प्रेशन पर जाते हैं, स्टोरेज मेरा पहला रीजन है, दूसरा रीजन मेरा टाइम है। तो हम लोग डेटा जब कॉम्प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हमें उसकी साइज कम जाती है। साइज कम जाने से क्या फायदा हमें होता है, वो हमें सिस्टम में, कंप्यूटर में कम स्पेस में उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड बात ये कहता है कि हमें अगर उसी फाइल को जो हम कॉम्प्रेस किए उस फाइल को अगर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसमें हमें कम समय लगेगा। दैट मीन्स इट विल बी इजिली अपलोडेड एंड इजिली ट्रांसफर फ्रॉम द कम्युनिकेशन चैनल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। एंड उस दूसरे तरीका से हम भी कर सकते हैं कि जब हम ट्रांसफर भी कर देंगे तो आप उसको इजिली डाउनलोड करके उसको आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सो दीज आर द टू प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग द डेटा कॉम्प्रेशन।
Next we have advantage of data compression. What are the advantage of data compression? So, we have some points under this. So, first point under the advantage of data compression is less disk space. That means it will take less disk space, यानी कि कम जगह लेगा उसको सेव करने के लिए। दूसरा एडवांटेज हमें ये है faster writing and reading. That means we are able to be read and write the compressed data fast as compared to the original data. ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहता है faster file transfer. A file size will be less, means we can easily transfer the file by using any communication channel. If the file size will be large, then really it is difficult to transfer the file from one point to the other point, from one user to the other user, because it will take time to upload, then it will take time to download also. So, access part is also difficult for that. Next point says that variable of dynamic range, that means variable of dynamic range. So, the range is not static, it is dynamic in range, it will be vary. And the last point says that byte order independent. In data compression, byte order are independent, it is not dependent from other. So, these are the basic advantage of data compression. Now, we have to see disadvantage. Obviously, any product or any software having advantage, then definitely some disadvantage will be there, that is called pros and cons. So, what are the disadvantages for this data compression? Added complication. First one is say that added complication, that means the file will be little complicated. Second point says that effects of errors in transmission. So, while doing transmission, chances to occur errors and that effect will be reflected. Third point says that slower for sophisticated methods, that means it will be slow for the sophisticated method. Last point, second last says that unknown bytes or pixel relationship, that means there is no relationship between the pixel and bytes. And the last point says that need to compress all previous data. Means we have to compress all the previous data for the data compression. So, these are the disadvantages of data compression. I hope it is clear for you. I just try to make easy for your understanding, so that I have given point wise. Now, we have a compression techniques. So, what are the techniques we are going to be used to compress the data? So, we have some techniques, we will see one by one. So, before that, compression technique क्या होता है वो हम जानना चाहेंगे. So, compression technique ये कहता है compression has become critical, कहता है एक critical है in the movie to combine voice and data network. It become a critical in the movie to combine voice and data networks. दूसरा बात एक कहता है compression techniques is used to squeeze the data. Squeeze the data मतलब क्या होता है, उसको दबा देना, ठीक है, उसको दबा देना. सो कंप्रेशन टेक्निक एक ही प्रिंसिपल पर काम करता है, वो उसका मेन एक ही मकसद होता है उस फाइल का या डेटा का साइज को छोटा करना, ठीक है. सो सम टेक्निक्स आर देयर, वी हैव टू सी. Before that, we have to see the disadvantage, application of the
data compression technique application. So that means this technique we are using mostly, where we are using mostly. So पहला कहता है कि इस टेक्निक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, कम्युनिकेशन चैनल में, टेलीफोन कॉल्स। कहता है इट इज यूज्ड टू compress voice telephone call transmitted over leased lines so that more calls can be placed on those line। यानी कि कॉम्प्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग जो वॉइस टेलीफोन कॉल का होता है लीज लाइन, उस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स को हम लोग प्लेस कर सकते हैं। दूसरा इसका एप्लीकेशन ये कहता है हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन में भी हम लोग डेटा कॉम्प्रेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारा जो साइज जो होती है, फाइल की साइज वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसको अगर फिर हम कहीं भेजना चाहेंगे तो उसके लिए भी हमें मुश्किल होता है। तो दिस टेक्निक कैन बी यूज फॉर दैट पर्पस। सो अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी एप्लीकेशंस आर देयर, बट आई हैव डिस्कस्ड 2 for you here. Next we have types of compression technique. Next we have types of compression techniques. So basically we have 2 important types of compression techniques here. So first we can call as a lossy, and second we can call as a lossless. Lossy and lossless. Here also I have seen lossless and lossy. So these are the 2 basic techniques for the data compression. By using these 2 techniques we are able to be compress the data. Now we have to see one by one carefully. So lossy data compression technique क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे अभी। So जैसे कि अभी हमने बताया कि compression technique 2 तरह के होते हैं, जिसमें हम लोग को दोनों का नाम दिया गया, एक का नाम है लूजी और दूसरा का नाम है लूजलेस। लूजलेस, ठीक है। सो पहला का नाम है लूजी और दूसरा का नाम है लॉसलेस। लॉसलेस। सो लेट्स सी फर्स्ट वन, लॉसी डेटा कॉम्प्रेशन। इसमें क्या होता है वो हम लोग देखेंगे यहां पर। लॉसी कंप्रेशन जो होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा विल बी टेक प्लेस। यानी कि डेटा का कुछ अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, यानी कि हटा देते हैं, ठीक है। तो लॉसी कंप्रेशन जो होता है टेक्निक, उसके दौरान फाइल का या डेटा का कुछ अमाउंट को हम लोग कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं। इसके अंदर में और हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। पहला यह कहता है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द फाइल साइज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। क्या कह रहा है, ग्रेट एक्सटेंट, विदाउट एनी नोटिसेबल थिंग। बिना किसी का नोटिस किए हुए फाइल का साइज को कम से कम छोटा करने का इसके पास क्षमता होता है, इस टेक्निक के पास। दूसरा कहता है पॉइंट इस टेक्निक में कि इस टेक्निक के दौरान अगर हम फाइल को कॉम्प्रेस्ड कर दिए हैं तो उस फाइल को अगर हम फिर से रिवर्स करके ओरिजिनल फाइल में आना चाहेंगे देन इट विल बी नॉट पॉसिबल। वो क्या है, उसमें हम लोग पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इस टेक्निक के द्वारा हम लोग फाइल की साइज को काफ़ी कॉम्प्रेस कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ा सा मार खा जाता है। यहाँ पर इसकी क्वालिटी हम लोग कंसिडर नहीं कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये टेक्निक उसके लिए ज़्यादा फायदा है, ये उपयोगी है जिसको साइज की, फाइल की क्वालिटी ज़्यादा मैटर नहीं करता हो। यानी कि इफ you only having a desire to get a smallest file but you are not thinking for the quality of the file, then you can go for this type of a compression technique. That means
you need to only compress the file, quality doesn't matter for you. So क्वालिटी इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, लेकिन साइज काफी छोटा हो जाता है। दूसरा बात ये कहता है इसमें, जो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, इट हेल्प्स टू सेव मच स्पेस ऑन द डिस्क टू स्टोर डेटा। डेफिनेटली जो हमने पहले भी आपको बता चुके हैं, लॉसी डेटा कंप्रेशन के दौरान जो हम लोग फाइल को कंप्रेस करते हैं वो फाइल काफ़ी छोटा होता है और उसको हम सेव करने के लिए हमें कम जगह की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात ये कहा जाता है, इसका आखिरी पॉइंट ये है कि इस कंप्रेशन टेक्निक के दौरान हमारा जो डेटा लॉस होता है वो हमारा एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस टेक्निक? सो वीडियो कॉन्फ्रेंस। सो वीडियो कॉन्फ्रेंस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर लॉसी data compression technique, because while doing this, using this technique for the video conferencing, frame may be lost, but the desired output what you want you will get it. So this is the best example for the lossy data compression technique. Now we have to see the application where we are using. So हमने बताया कि जहाँ पर आपको क्वालिटी मैटर नहीं करता है, इफ़ यू डोंट वांट टू सी द क्वालिटी ऑफ एनी फाइल एंड यू ओनली वांट टू सी द साइज ऑफ द फाइल, देन यू हैव टू गो फॉर द लॉसी डेटा कॉम्प्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि दिस टाइप ऑफ ए टेक्निक मोस्टली यूज फॉर ऑडियो एंड वीडियो कॉम्प्रेशन, यानी कि दिस टाइप ऑफ ए टेक्निक मोस्टली यूज फॉर ऑडियो एंड वीडियो कॉम्प्रेशन, जहां पर हमें साइज मैटर करता है, क्वालिटी मैटर नहीं करता है। सो दिस आर द एरिया वेयर वी आर गोइंग टू बी यूज द लॉसी कॉम्प्रेशन टेक्निक्स। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। नाउ वी हैव टू सी लॉसलेस compression. Lossless data compression technique. Lossless. The name itself says that lossless. That means loss but less. यानी कि completely उसको हम लोग लॉस नहीं कर रहे हैं, कुछ लॉस करेंगे लेकिन कम करेंगे। So lossless data compression technique is a technique that involves only on a certain or a small amount of elimination of data. That means by using this technique we are able to eliminate a small amount of data, or we are able to be reduce small size. That means small कहने का मतलब यह है कि इस टेक्निक के दौरान हम लोग किसी भी फाइल को ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कम मतलब उसको अगर मान के चले हमारे पास 5 MB का फाइल है, तो इसके दौरान अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे तो मैक्सिमम हम लोग इसके दौरान हमारे पास 3 या 4 या 3 MB तक जाएंगे हम लोग। समझें? फिर से इस बात को मैं समझाना चाहूँगा कि लॉसलेस ये कहता है कि हम इसमें डेटा को कंप्रेस करते हैं लेकिन हमारा स्मॉल अमाउंट होता है। क्या होता है? स्मॉल अमाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 5 MB, जस्ट आई एम कंसिडरिंग ए स्मॉल। 5 MB हमारे पास एक फाइल का 5 MB है, उसको हम कंप्रेस करना चाहते हैं, तो इसके दौरान हम मैक्सिमम कंप्रेस करेंगे तो 2 या 3 MB तक जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम लॉसी कंप्रेशन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो यही 5 MB की फाइल को हम लोग KB में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो यही दोनों में खास डिफरेंस है। लेकिन लॉसलेस में होता है हमारा क्वालिटी मैटर करता है। इसमें हमारा क्वालिटी जो फाइल की साइज कम होती, कंप्रेस होती है, लेकिन क्वालिटी इसका बरकरार रहता है। हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट करके हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है इसमें कि हमारा क्या कहता है, दिस टेक्निक ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फाइल साइज बट नॉट टू बी ग्रेटर एक्सटेंट। डियर फ्रेंड्स, काइंडली जस्ट हैव अ लुक फॉर दिस पॉइंट, ग्रेटर एक्सटेंट, यानी कि ज्यादा
इसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते इस टेक्निक को अप्लाई करके, जो हम लोग लॉसी कॉम्प्रेशन टेक्निक में हम लोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहता है कि हमें रिस्टोर बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि जो हमें लॉसी में क्या होता था कि अगर हम किसी भी फाइल को या डेटा को कॉम्प्रेस कर देते हैं तो उसको फिर हम रिवर्स करके ओरिजिनल में नहीं आ सकते हैं, लेकिन लॉसलेस में यह होता है कि वी आर एबल टू बी रिस्टोर बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। दैट मीन्स वंस द फाइल विल बी कॉम्प्रेस्ड बाय यूजिंग द lossless compression technique, then we have a chance to restore back to its original form. So this is one big difference between the lossy data compression technique and lossless data compression technique. Next point we have, the reduction in size is not much in this technique. As I told you, in this technique we are not going to be reduce the size to a greater extent. Last point ये कहता है, with lossless compression data is compressed without any loss of data. Dear friends, kindly just have this last point, compare this last point with the last point of the lossy compression data technique. So इसमें क्या कह रहा है कि विदाउट लॉस ऑफ एनी डेटा, इसमें लॉस नहीं होता डेटा का, लेकिन वहां पर क्या है, लॉस होता है। लॉसी कॉम्प्रेशन डेटा टेक्निक में हमारा डेटा का लॉस होता है एंड इट शुड बी एक्सेप्टेबल कह रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्रेटर एक्सटेंट तक उसको हम लोग कॉम्प्रेस करते हैं, लेकिन लॉसलेस में डेटा का लॉस नहीं होता है हमारा। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स अंडर द लॉसलेस कॉम्प्रेशन टेक्निक। नाउ वी हैव टू सी the application of lossless compression data technique. So lossless ये कहता है कि in lossless compression it is not useful when you want reduce size for extra storage. कहता है कि lossless compression is not useful when you want reduce size for extra storage, यानी कि ये उसके लिए यूजफुल नहीं है जहां पर हमें क्या कहता है, व्हेन यू वांट रिड्यूस साइज फॉर एक्स्ट्रा स्टोरेज। एक्स्ट्रा स्टोरेज साइज के लिए अगर हम लोग इसको करना चाहते हैं वहां पर ये हमारे लिए योग्य फायदेमंद नहीं है। नेक्स्ट हमारा ये कहता है कि ये जो हमारा टेक्निक है वहां पर अप्लीकेबल है जहां पर हमें क्वालिटी मैटर करता है, साइज मैटर नहीं करता है। साइज मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है। यानी कि वी वांट टू बी हैव द क्वालिटी ऑफ द फाइल बट वी डोंट वांट टू बी सी द साइज, देन वी कैन गो फॉर द लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये कहता है इसमें, it is useful for maintaining the original file by eliminating only unwanted data. That means by using this technique we are only going to be eliminate unwanted data, that is those data which are not needed, compulsory we can say that. Second last point ये कहता है इसमें कि इस तरह का टेक्निक मोस्टली यूज फॉर टेक्स्ट फाइल, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, confidential information. That means this type of a data compression technique mostly used for text files, sensitive documents and confidential information. If you want to be compress all this type of a file, then we have to go for lossless compression technique. And the last point it says that critical financial data file, yes, कह रहा है कि फाइनेंशियल डेटा फाइल को कंप्रेस करना चाहते हैं, देन वी शुड मस्ट गो विथ लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक, वी विल नॉट गो विथ लॉसी डेटा कंप्रेशन टेक्निक। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मैंने दो तरह का टेक्निक आपके सामने बताया है यहां पर,
लॉसी डेटा कंप्रेशन टेक्निक एंड लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक। दोनों टेक्निक का बेसिक पॉइंट क्या है, दो मैंने समझाने का कोशिश किया और फिर हमने एप्लीकेशन भी आपके सामने दोनों का मैंने रखा। इस दोनों में बस एक बात को ध्यान रखना है डियर फ्रेंड्स कि लॉसी में हम डेटा को काफी छोटा करके कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि एक फाइल है उसको हम लोग काफी छोटा तक कंप्रेस कर सकते हैं और उसमें एक चांसेस होता है कि हमारा डेटा लॉस हो सकता है ओरिजिनल। और उसमें यह भी बताता है लॉसी में कि हम एक बार डेटा को कंप्रेस कर देते हैं तो फिर से हम उसको ओरिजिनल फाइल में हम नहीं आ सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इसमें यह कहता है लॉसी में कि हमें इस डेटा टेक्निक के दौरान, कंप्रेशन टेक्निक के दौरान हमें क्वालिटी पर ध्यान नहीं देना पड़ता है, यानी कि क्वालिटी हमें यहां पर नहीं मिल पाती है। सो दैट इज द 4 बेसिक पॉइंट अंडर द लॉसी कंप्रेशन टेक्निक। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि डेटा को काफी एक्सटेंट तक हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने ये आपके सामने रखा कि हमें एक बार कंप्रेस होने के बाद फिर से हम लोग ओरिजिनल डेटा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात को मैंने ये रखा आपके सामने कि इस टेक्निक के दौरान हम लोग साइज को छोटा करेंगे लेकिन क्वालिटी हमें नहीं मिलेगी, यानी कि इस टेक्निक से हमें क्वालिटी अच्छा नहीं मिल सकता है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि इस टेक्निक के दौरान हमें चांसेस होता है कि हमारा डेटा लॉस होगा, इसीलिए इसको हम लोग ज्यादातर, इस टेक्निक को ज्यादातर हम लोग दो ही जगह इस्तेमाल करते हैं, ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन के लिए। यानी कि ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल को कंप्रेस करना है, उसकी साइज को छोटा करना है, देन हम लोग ब्लाइंडली वी कैन मूव फॉर द लॉसी कंप्रेशन टेक्निक। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लॉसलेस में यह कहता है कि लॉसलेस हमारा टेक्निक है जिसके दौरान हम लोग, पहला पॉइंट बता रहे हैं, जिसके दौरान हम लोग डेटा को कंप्रेस करेंगे लेकिन ग्रेट एक्सटेंट तक हम लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें कहा जा रहा है कि डेटा जो मेरा कंप्रेस हो जाता है उससे फिर हम ओरिजिनल डेटा पर जा सकते हैं, यानी कि रिवर्स बैक हम लोग हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें कहा जाता है लॉसलेस में कि इसके दौरान हमें डेटा का कोई लॉस नहीं होता है। इस कंप्रेशन के दौरान हमें डेटा का कोई लॉस नहीं होता है और हमें डेटा का क्वालिटी भी मिलता है इसमें। तो ये हमारा बेसिक पॉइंट है अंडर द लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक। और इस तरह का जो टेक्निक है मोस्टली हम लोग 2-3 जगह पर इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कोई टेक्स्ट फाइल को करना हो, या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को करना हो, या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को करना हो, या फाइनेंशियल डेटा शीट को हमें कंप्रेस करना हो, तो ये सब एरिया के लिए हमें, इन सब चीजें के लिए हमें, ये सब फाइल को अगर हमें कंप्रेस करना है तो हमें लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ 4 बेसिक पॉइंट्स आई कंपेयर द लॉसलेस विथ लॉसी डेटा कंप्रेशन टेक्निक। सो लॉसलेस क्या होता है? इट्स ए टेक्निक, क्या कहता है, विच इज एबल टू बी कीप द ओरिजिनल फाइल। कहना यह चाह रहा है यहां पर कि लॉसी टेक्निक जो होता है, लॉसी टेक्निक जो होता है उसमें ओरिजिनल फाइल को हम आ सकते हैं, यानी कि लॉसलेस के दौरान, लॉसलेस टेक्निक के दौरान हम लोग कंप्रेशन होने के बाद फिर से हम लोग ओरिजिनल फाइल पर हम लोग आ सकते हैं। रिवर्स, दैट मीन्स वी हैव अ रिवर्स ऑप्शन इन द लॉसलेस टेक्निक, बट द सेम ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द लॉसी। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि लॉसलेस टेक्निक्स प्रोड्यूस लार्जर फाइल कंपेयर टू द लॉसी टेक्निक। लॉसलेस टेक्निक जो होता है प्रोड्यूस लार्जर फाइल कंपेयर टू द लॉसी टेक्निक, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। दूसरी
लास्ट पॉइंट ये कहता है कि लॉसी टेक्निक जो होता है मोस्टली हम लोग ऑडियो, वीडियो और इमेज के कंप्रेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लॉसलेस को हम लोग मोस्टली कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? डेटा फाइल को कंप्रेस करना हो, या फाइनेंशियल फाइल को कंप्रेस करना हो, या टेक्स्ट फाइल को कंप्रेस करना हो, वहाँ पर हम लोग लॉसलेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है, इसी के अंदर में एक पॉइंट हम और ऐड करना चाहते हैं, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। ये कहता है कि लॉसलेस में क्वालिटी मैटर करता है, लॉसी में क्वालिटी मैटर नहीं करता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Now we have some basic compression technique. Apart from this, we have some basic compression techniques. So what are the basic compression techniques we have? We have to see one by one. What we have? Null compression. Null compression के दौरान हम लोग जो blank space जो होता है हमारे फाइल में, उसको हम लोग क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। समझे? उसको हम लोग क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं या रिमूव करते हैं हम लोग। रन लेंथ कंप्रेशन में क्या होता है? इसके दौरान हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो सीरीज ऑफ 4 और मोर रिपीटिंग कैरेक्टर, जो कैरेक्टर हमारा रिपीट करता है बार बार, उस कैरेक्टर को हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्रेस करते हैं। समझ रहे हैं? उस कैरेक्टर को हम लोग क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं या कॉम्प्रेस करते हैं, या उसको हम लोग रिमूव करते हैं। कीवर्ड इनकोडिंग क्या होता है? कीवर्ड इनकोडिंग कहता है कि ये ऐसा टेक्निक है जहां पर फ्रीक्वेंटली अकरिंग डेटा, यानी कि फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स, जो वर्ड बार बार हमने इस्तेमाल किया है, उस वर्ड को क्या करता है? रिप्लेस करता है। समझ रहे हैं? जैसे कुछ वर्ड हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुछ कैरेक्टर को भी हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, SH और TH को हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? रिप्लेस करते हैं, इनकोड करते हैं। ठीक है? सो ये हमारा क्या है? कीवर्ड इनकोडिंग है। कीवर्ड इनकोडिंग है। हफमैन कोडिंग क्या कहता है कि हफमैन कोडिंग एक ऐसा हमारा कंप्रेशन टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग डेटा को कंप्रेस करते हैं, लेकिन हमने क्वालिटी को उसको मेंटेन करके रखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये हमारा किस टाइप का होता है? लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक के अंदर में हमारा हफमैन कोडिंग आता है। तो इसके दौरान एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं वो देखेंगे। द टर्म means the use of variable length code table for encoding a source symbol where the variable length code table has been derived in a particular way based on the essential probability of occurrence of each possible way of the source symbol। यानी बस ही इतना इसमें अभी समझ लीजिए आप कि हफमैन कोडिंग एक हमारा कंप्रेशन टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग डेटा को क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। और हफमैन कोडिंग जो हमारा लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक के अंतर्गत में आता है। ये हफमैन कोडिंग एक किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो डेविड ए हफमैन ही वाज द स्टूडेंट एंड ही वाज डूइंग PhD दैट टाइम ओनली। ही हैज गिवन दिस कॉन्सेप्ट that Huffman coding is able to reduce the data. And the last topic we have under the basic compression technique is Lempel-Ziv-Welch. See here, Lempel-Ziv-Welch ये 3 नाम से बना हुआ है, समझे? Lempel is the name of one person, Ziv is the name of other person, and Welch is the name of third person. So by this compression technique is given by the 3 scientists. First one is called Abraham Lempel, second Jacob Ziv, and the third
Terry Welch. So these are the three main scientists found together that one algorithm, they created one algorithm and they proved that by using this algorithm we are able to be compress the data. We are able to be compress the data. So the name is given as a Lempel-Jeeves-Welch. So dear friends, हमारे पास जो बेसिक जो अभी हमने बताया, अपार्ट फ्रॉम द टू इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ अ डेटा कंप्रेशन, वी हैव सम बेसिक डेटा कंप्रेशन टेक्निक. उसमें हमारे नल को हमने पढ़ा, नल कंप्रेशन को पढ़ा, फिर हमारे पास रन लेंथ है, कीवर्ड है, हफमैन कोडिंग है, एंड द लास्ट वी हैव रीड दैट Lempel-Jeeves-Welch. So we have 5 other basic compression technique which is used for the compressing the data. Now we have other compression technique only for the video compression, only for the using for image or video compression, not for the text file. So apart from other this all techniques, we have other techniques which is mostly used for the image compression and video compression. See here, I have mentioned here video or image compression. That means now we have a 3 compression techniques here. By using this compression technique, we are able to be compress the graphics, that means image or video mostly. Inside this we have to first see that DCT, that means discrete cosine transform. This is the technique which is used to be compress the data, in such a way that they represented as a series of cosine waves. फिर से मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहते हैं कि DCT जो है, इट्स ए कॉमन कंप्रेशन टेक्निक इन विच डेटा इज रिप्रेजेंटेड एट अ सीरीज ऑफ कोसाइन वेव्स. यानी कि इस टेक्निक के द्वारा हम लोग डेटा को जो रिप्रेजेंट करते हैं सीरीज ऑफ कोसाइन वेव्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. फैक्चुअल कंप्रेशन हमारे पास क्या है, ये क्या कहता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इमेज को हम लोग ब्रेक करते हैं स्मॉलर पीसेस में, एंड बाय दिस वे वी आर एबल टू बी compress the data. And the last one we have wavelet transform. So wavelet transform में हम लोग क्या करते हैं, we using a wavelet transform to describe an image and average of the coefficient in the pixel. That means we are working with the pixel here. यानी कि वेवलेट ट्रांसफॉर्म में हम लोग पिक्सल पर काम करते हैं, यानी कि किसी भी इमेज की पिक्सल को हम लोग रिड्यूस करते हैं, उसको हम लोग कंसिडर करके हम लोग यहां पर चलते हैं. सो दीज आर द 3 other compression technique, mostly we are using for graphics and video compression. I hope it is clear for you. Let's recall this video session from beginning. So in the beginning I covered the definition of a data compression. In that we have seen that because of the 2 basic reason we are going for the data compression, storage and time. Then we have seen that advantage and disadvantage. Then finally we jump on the types of compression techniques. In that we have seen that lossy and lossless. We compare these both techniques one by one with application and definition. Then finally we have some other compression techniques we touched. Inside that we have seen 5 basic techniques,
using for the compression of data apart from lossy and lossless. And at last we have seen that graphics and video compression techniques. Inside this we covered 3 techniques: DCT, factual and wavelet. I hope it is clear for you. Thank you.